गावे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हसीना के सौ दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे
करण्यात येत आहे की इथे जवळ येण्याची कृपा करावी। जेबीपीएस भारत माता की। इन बच्चों का आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के से कितना जुनून है। इस भारी बारिश के बाद भी देखिए जैविक बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष अधिकारी से गुजारिश करता कार्यकर्ता सबसे रोशन देश देखकर हमें भी जोश आ रहा है। जब तिरंगा आकाश की ओर जाते हुए वह तिरंगा वीरों के प्राण की आहुति देगा। भारत देश के निर्णय को हम झुकने नहीं देंगे। इस तिरंगे की शान के लिए हम अपनी आन बान शान और जान भारत माता की। on this happy and solemn occasion. This Independence Day as Azadi Ka Amrit Mahotsav, when we come together to celebrate our country's independence, as we gather here today, we would like to take the opportunity to wish all of you a very happy Independence Day. As proud Indians, we hoist the flag and remember the sacrifice of martyrs today. we start today's program with the welcome speech by Tejsaj Kavla of class 7. On the occasion of Independence Day. Before Independence Day, India had been ruled by Britishers for almost 200 years, and after continuous struggle of our great freedom fighters, we achieved independence on 15th of August 1947. On this day, the national flag was hoisted on Red Fort by the Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru. Since then, we have been celebrating Independence Day.
This is a day of pride and joy for every citizen of the country. The government launched Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75 years of independence and celebrate the glorious history of its people, culture and achievements. Through this campaign, the people are encouraged to bring the Indian flag at their home and hoist it. I heartily welcome our Director Advocate Nazim Khan sir and our Principal Mrs. Umaira Khan ma'am along with all the teachers and students. I welcome all the parents. I hope the program will be fruitful. Thank you. Girls to perform a dance on the song Bharat Ki Beti. ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो, जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो, of the brave heroes and martyrs who lost their lives in the wars and attacks. On the theme, the forgotten superheroes of India, rekindling patriotism, the Take approach in our country, celebrate India. And there are different topics taken for drama which is performed by school students. Different schools take different topics for drama performances such as depicting life stories of Indian freedom strugglers. Lots of freedom fighters during pre and post independent drama and general basis on India's superhero like freedom strugglers, our prime minister, our great politicians, etc. King of pre-independence was the Sultan, one of the Indian rulers and who have defeated British armies. His rocket led to the defeat of the British in the Second Anglo-Mysore War of 1782, first in India. Let me think. Yes. The Tata Tope was an Indian rebel of 1857 and one of his notable leaders. He is widely considered as the best and most effective general. Then Mangal Pandey. He was Sepoy in the Bengal Native Infanteries, 34th Regiment of the British East India Company. He was a brave and courageous warrior of India who stood against injustice. There were involvement of women also in our freedom fighter Savitribai Phule. She played an important role in fighting for women's rights during the British rule. She is regarded as an important figure of social reform movement in Maharashtra. She is remembered for her valor during the Indian War of 1857 and 58. She did not surrender even after her troops were overwhelmed.
Yes, we got brave leaders who fought with courageous hearts like Lala Lajpat Rai. He was an Indian author, freedom fighter and politician. He was leading a silent protest against the Simon Commissions in Lahore when he was brutally lathi charged by the Superintendent of Police James Scott. He was a strong advocate of Swaraj. He also given the title of Lokmanya. He played a pioneering role in building a mass political consciousness towards the Indian independence movement. More such heroes was Vallabhbhai Patel. Popularly known as Sardar Patel, was a freedom fighter with a difference. His role in organizing and mobilizing the Kheda Satyagraha of 1918. Another one is Dadabhai Naoroji. He was a prominent Indian nationalist and critic of economic policy of the British Raj in India. I remember the freedom struggler who lost their life at the early age for country was Bhagat Singh. He is an Indian revolutionary freedom fighter. He is considered a national hero. He was hanged to death by British colonizer at the age of 23 years. You are right, soldier. With him, we remember Sukhdev for his involvement in the Lahore conspiracy case. He started the Naujawan Bharat Sabha, gearing the youth to join the freedom struggle. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. The words by Subhash Chandra Bose, also called Netaji, is known for his role in independence movement of India. He founded Indian National Army, Azad Hind Fauj, to overthrow British Empire from India. I remember one journalist, Bipin Chandra Pal. He worked as a journalist to spread the nationality news. He started writing various newspapers and magazines like Vande Mataram, Paridhar Sake, New India and Swaraj. Carries individual satyagraha and support freedom fighters is Lal Bahadur Shastri. He was an Indian statesman and served as second Prime Minister of India. He carried individual satyagraha and support to independence movement. During the independence era of 5 years was our Bapuji, Mahatma Gandhi. He was honored in India as father of the nation. He pioneered and practiced the principle of Satyagraha resistance to try and no mass non-violent civil disobedience. Yes, exactly. And his wife Kasturba Gandhi was concerned herself with the welfare for the women there. She played an active role in Borsan Satyagraha in 1923 to 24 and Barodli Satyagraha in 1928 to 29. After the independence, Jawaharlal Nehru was served as the first Prime Minister to India. Commonly known as Pandit, was an Indian anti-colonial nationalist secular humanist. Man of India, Dr. Abdul Kalam Azad, for whom work was literary worship, he is widely referred to as the people's president because of its simplicity. Think friends, these just are our superheroes. Let heroes. Even I cannot think of anyone else. After I tell you, I am sure all of you will agree to me and able to think about more such heroes. Being army officers, Navy, Air Force officers and Navy officers, you all know many such heroes. Yes, their lives in battle and attack which took place after independence. They are not India's superheroes? Yes, you are right, soldier. Many soldiers sacrifice their life to protecting our country on the border. If we sit and recollect, we will remember a huge number of soldiers who sacrificed their life for our country after independence. Our younger generation hardly even know the names of these superheroes. We must make our younger generation known about some of them and how they lost their life fighting for the country. But before that, let us dedicate a song and a performance in the memory of these martyrs. To perform dance on Sare Jahan Se Achha. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इस
पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। Oh, sorry, all of us have not seen the great leaders of our freedom movement. We only see from their photographs. School and Creative Minds Preschool take this pleasure to make you imagine how our leaders would have looked if they were alive. Let us clap for wonderful little kids in the attire of Shivaji Maharaj. प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। Moksha Pasula. धाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। Rani Lakshmibai. Gurudev Madhani. Aisha Khan. मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस धरती की बेटी हूँ। ये धरती माँ मेरी करने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चले जाए। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग, हर हर महादेव, भारत माता की जय। School name is Creative Minds Preschool. मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, थैंक यू। झांसी की रानी हूँ मैं, थैंक यू। वफादार देखी होगी। थैंक यू। नमस्कार। Let us clap for little kids in the attire of Bhagat Singh. Hey everyone, my name is Radhya Deepak Chakravarti from UKG. Thank you. Hello everyone, my name is Abhi Thakur. I'm wearing color of Bhagat Singh. जय फरोशी, ये मनाना अब हमारे दिल में, देखना है कौन कितना बाजू है कातिल में। हमारा कुछ लगा दिया है, हम इसे पाके रखे, रात का रास्ता, रात चारों से
My name is Muhammad Afan. I am Jawaharlal Nehru. माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे बल्ली कित्थे है? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा,
तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। पेरेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है। आज इंडिया ने 75 वर्ष अपने आज़ादी के कंप्लीट करके 76 ईयर में स्टेप किया है। ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मौका है और बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्षण है हमारे सभी के लाइफ में। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये 75 वर्ष में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन अब अगले आने वाले 25 वर्ष में यहाँ बैठे हुए हर पेरेंट्स को इस देश को कुछ ना कुछ देना है। क्या देना है? देना है आपको अपना बच्चा, जो कि एक एसेट बन के वो देश के काम आएगा अगले 25 साल में। और ये जो एसेट है नेक्स्ट 25 ईयर्स में जो रेडी होने वाला है या नेक्स्ट 20 ईयर्स में जो रेडी होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये हमें गंभीरता से सोचने का एक विषय है। अगर मैं मेरी बात अगर करूं या हमारी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों की अगर जनरेशन की अगर बात अगर हम लोग करें तो सबसे विशेष बात क्या थी? हम लोगों की जो पढ़ाई होती थी, हम लोगों की जो इम्तिहान जो होते थे, वो इम्तिहान के अंदर में एक सबसे विशेष बात ये रहती थी कि जिस बच्चे ने जाके एग्जाम में सबसे अच्छी उल्टी की, सबसे अच्छी वोमिटिंग की, वो बच्चा जो है क्लास का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा। यानी रट लो और उसको जाके पूरा किताब पेपर पे जाके उतार दो, बहुत ज़्यादा रटा दो, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करवा दो, और वो स्कूल अपने एग्ज़ाम में जाके वो वोमिट आउट कर देगा। और वोमिट का जो सबसे अच्छा वोमिटिंग जिसका रहेगा, वो बच्चा जो है वो क्लास का सबसे टॉपर और क्लास का सबसे अच्छा बच्चा। एक सिनेरियो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि पहले यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते थे। क्या आते थे? व्हेन वाज महात्मा गांधी जी बॉर्न? व्हेन वाज महात्मा गांधी जी बॉर्न? पहले जैसा अगर यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करें या इसकी बात करें, तो सबसे बढ़िया उसके अंदर क्या क्वेश्चंस आते थे? जैसा एक क्वेश्चन आता था, व्हेन डिड महात्मा गांधी जी बॉर्न? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अब क्या हुआ? एक हमारे घर में एक छोटा सा डिवाइस कई घरों में आजकल मिलने लगा है। वो डिवाइस का नाम क्या है? मोबाइल। अगर मैं मोबाइल अगर पूछता हूँ तो मोबाइल मुझे 2 मिनट में ये आंसर दे देता है कि, तो मोबाइल मुझे बड़े आसानी से जवाब दे देता है, जिसका कि नाम है एलेक्सा। एलेक्सा ये हर चीज़ का हमका आंसर दे देता है कि गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। कस्तूरबा गांधी जी का डे ऑफ मैरिज या एज ऑफ मैरिज जो था महात्मा गांधी जी से कितना था, कितने वक्त में कितना था, तो 13 साल था। ये सभी आंसर हमें आजकल ये एलेक्सा दे देता है। तो यूपीएससी ने क्या किया? अपना पूरा क्वेश्चन पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। अब उसने पैटर्न चेंज करके क्या किया? उसने पैटर्न चेंज करके अब ये नहीं पूछता है कि वो गांधी जी का जन्म कब हुआ था। यूपीएससी अब ये पूछता है कि अगर गांधी जी अगर आज जिंदा होते, गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो वो क्या कर रहे होते। अगर यूपीएससी सेकंड टॉपर का मैंने आंसर शीट पढ़ी, मैंने रिसेंटली जो यूपीएससी में जो सेकंड टॉपर जो आए, टॉपर ने उसमें आंसर ये लिखा उसने कि अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो वो फार्म बिल्स के अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे होते और वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, और सुप्रीम कोर्ट में वो कोई वकील नहीं करते क्योंकि ही वॉज ओनली द लॉयर। इस तरह से उन्होंने पूरा एक आंसर लिखा। कहने का पर्पस क्या है? ये एक पार्ट है। और क्रिएटिविटी जो आंसर्स के अंदर में चाहिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और सिनेरियो आपके सामने में रखना चाहूँगा। हमारे विनय सर रिसेंटली कोट परचेस करने के लिए गए, ब्लेजर परचेस करने के लिए गए टेलर की दुकान पे। तो टेलर का छोटा भाई बाहर खड़ा था, बड़ा भाई अंदर खड़ा था। और नीचे इको बहुत ज़्यादा हो रहा है शायद से। छोटा भाई बाहर खड़ा था, बड़ा भाई अंदर खड़ा था। बड़ा भाई छोटे भाई को विनय सर ने जाके कहा कि मुझे एक ब्लेजर दीजिए, आप मुझे एक ब्लेजर दीजिए। तो बड़ा भाई ने उनको कहा कि एक ब्लेजर उनको दिखाया और उसने कहने लगा, सर द ब्लेजर इज ऑफ ब्लैक कलर। विनय सर ने पूछा उसको दिख कैसा रहा है? सर ब्लेजर ब्लैक कलर का है। विनय सर ने फिर उनको पूछा ये ब्लेजर कैसे दिख रहा है? तो फिर उसने कहा सर ये ब्लेजर ब्लैक कलर का है। तो अंदर से बड़े भाई ने चिल्लाया,
अरे बोल, अच्छा दिख रहा है। तो फिर वो बोलने लगा, सर इट्स लुकिंग ऑसम, सर इट्स लुकिंग ऑसम। विनय सर ने पूछा कितने का है? सर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। कितने का है? सर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। फिर से अंदर से बड़े भाई ने चिल्लाया, अरे वो पूछ रहे हैं कितने का है, बता 10,000 रुपए का है, बता 10,000 रुपए का है। तो वो छोटा भाई बोलता, सर ये 5,000 का है। बोले, उसने कहा सर ये 5,000 का। विनय सर को उसने कहा कि अंदर से आवाज आई कि 10,000 का है, और छोटे भाई ने कहा कि ये सर 5,000 का है। विनय सर ने कहा, ये मौके का फायदा जल्दी से उठा लो, ये बहरे को सुनाई नहीं देता है, 5,000 रुपए दो और अपना कोट लेके भाग जाओ। उन्होंने 5,000 रुपए तुरंत निकाल के दिए और अपना कोट लेके वापस आ गए। पता है वो दुकान का नाम क्या था? पता है आप लोगों को? वो दुकान का नाम है अमेज़न महासेल। साल भर आप एक प्रोडक्ट को देखते हो और आप साल भर उस प्रोडक्ट के परचेस करने की इच्छा करते हो। साल भर आप क्या करते हो? उस प्रोडक्ट पे जाके क्लिक करते हो कि ये कोट है, ये ब्लेजर है, मेरे साइज का है क्या? फिर अपने पर्स को देखते हो, फिर शांत हो जाते हो। फिर वो ब्लेजर को देखते हो, फिर शांत हो जाते हो, यार नेक्स्ट मंथ परचेस कर लूंगा, नेक्स्ट मंथ परचेस कर लूंगा। गूगल क्या कर रहा है? आपका डेटा जमा कर रहा है, आपका एनालिसिस कर रहा है कि ये इनको कोट चाहिए कितने में। जब 10,000 का था तब परचेस नहीं करना था, जब 6,000 का था तब भी परचेस नहीं करना था। उसकी एक्चुअल कॉस्ट 2,500 रुपए है। हाँ, ये 6,000 के नीचे ये पक्का परचेस कर लेगा तो उसको 5,500 रुपये कॉस्ट बता देंगे। कहने का पर्पस ये बहुत क्लियर है कि यहाँ बैठे हुए हर पेरेंट्स के बच्चे का जो नेक्स्ट 25 ईयर्स में जो कंपटीशन होने वाला है वो इन मशीन्स के साथ में होने वाला है, इन कंप्यूटर्स के साथ में होने वाला है। कहने का पर्पस ये है कि ये जो मशीन्स है, ये जो कंप्यूटर्स जो है, जो आपके बच्चे के साथ में काम करने वाली है, ये लोग पेमेंट बढ़ाने के लिए नहीं कहती है। ये कंप्यूटर्स कभी आप लोगों को नौकरी नहीं मांगती है। ये कंप्यूटर्स आपके लिए थकान नहीं मांगती है, थकती नहीं है। ये कंप्यूटर्स लॉकडाउन में घर में नहीं बैठता है। ये कंप्यूटर जो है 24 आवर्स नॉन स्टॉप काम कर सकता है, आपसे अच्छा कर सकता है। जैसा आपने कहा कि एग्जाम के समय पे मैंने बताया कि एक अमीर बाप का कोई बेटा छोटा सा एक ईयरफोन कान में लगा के जाएगा और धीरे धीरे से पूछ लेगा क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था बताओ, तो बता देगा कि बस ये ईयर में हुआ था, पहली आज़ादी की जंग कब हुई थी, 1857 में हुई थी, कौन कौन थे, तो टीपू सुल्तान थे, रानी झांसी थी, वगैरह वगैरह। क्या हो रहा है डियर पेरेंट्स? ये चीज यहाँ पे बैठे हुए हर पालकगण को समझने की जरूरत है कि हम लोग जो डिसीजन जो लेते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बारे में, क्या हम हमारे बच्चों के लिए वो उल्टी करने वाली सिस्टम में ही हम लोग हमारे बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या हम लोग हमारे बच्चे को उस चीज को समझ के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं, हम हमारे पड़ोसी की बात सुन के डिसीजन ले रहे हैं या खुद अपने समझ से डिसीजन ले रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनका बच्चा वो स्कूल में जाता है इसलिए हमें भी वही स्कूल में जाना है, लेकिन हमें हमारी बुद्धि नहीं लगानी है। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं बहुत खुल के आज बात करना चाहूंगा, क्योंकि अगले 25 वर्ष में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इवन मैं भी, हम सभी को इस देश को एसेट देना है। और एसेट कैसा देना है ये चीज हमें सोचना पड़ेगा। क्या एसेट ये देना है कि वो नीरव मोदी के जैसा ऐसे पैसा चोरी करके भाग जाए, या एसेट हमें एपीजे कलाम जैसा देना है जो इस देश के अंदर में, जो इस देश में रह के इस देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी? ये सबसे बड़ी आज हम सभी के लिए सोचने का पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट 25 ईयर में हम लोग 100 साल पूरे करने वाले हैं। और जब देश 100 साल पूरे करेगा तो क्या डिमांड करता है हमारा देश? हमारा देश डिमांड करता है अच्छे नागरिक। हमारा देश क्या डिमांड करता है? अच्छी नौकरी देने वाले लोग। हमारा देश क्या डिमांड करता है? अच्छे से अच्छा काम करने वाले लोग। मेरा आज यहाँ पे 75वें वर्ष पे खड़े रह के यही संदेश आप लोगों तक पहुंचाना है कि हम लोग अपना खुद मूवमेंट आगे का तय करें कि अगले जो 25 साल जो रहे आज़ादी के, वो आज़ादी के जो अगले जो 25 साल जो 100 वर्ष जब पूरे जब होंगे, तब हम लोग किस तरह से हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग काम करेंगे। डियर पेरेंट्स, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत क्लियर कह रहा हूँ। कंप्यूटर्स को कॉम्पीट नहीं किया जा सकता। आप जो काम एक दिन में करते हो वो काम कंप्यूटर 1 मिनट में करता है।
हो सकता है हमें कुछ कमियां हो सकता है हम लोगों के लिए कुछ चीज़ें हमारे बारे में एक भ्रम फैला दिया गया हो। जैसा एक आम तौर पे मुझे कल ही एक पेरेंट्स बैठे थे, वो बहुत हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सर ये भ्रम हमको तोड़ना है। क्या भ्रम फैला दिया गया कि क्रेसेंट पब्लिक स्कूल और क्रिएटिव माइंड स्कूल का प्री स्कूल बहुत अच्छा है, आगे का 1st to 9th का स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पे फंक्शन होते हैं, या इसके अलावा और भी इस तरह से जो भी भ्रम फैलाने हैं। मैं आज ये बात बहुत खुल के कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ों को आप खुद जज कीजिए कि अगर आपका बच्चा सिर्फ वो वोमिट करने के ही लायक का अगर रह जा रहा है और वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ सकता है या कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता है या वो चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो शिक्षा का हम लोग कोई भाग बन रहे हैं? क्या हम लोग क्या एक अच्छा एसेट इस कंट्री को दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, नहीं दे रहे हैं। एक अच्छा एसेट, एक अच्छा नागरिक तभी बन पाएंगे जब हम वो चीज़ों के लिए हमारे बच्चों को रेडी करेंगे, और हमारे बच्चों को रेडी करने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल्स में अच्छे से अच्छी शिक्षा देके, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी देके बच्चों को पढ़ाना है। मैं यही बात के ऊपर अपनी बात यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि अगले 25 साल हमारे लिए एक चैलेंज हो। हम सभी पेरेंट्स बैठ के प्लान करें, एक सिस्टम, एक चॉकआउट करें कि हम अगले 25 साल में हमारे बच्चे को किस तरह से देखना चाहते हैं और उसको एक नई दिशा दें। क्योंकि वो विजन अगर आप लोग नहीं दोगे, वो विजन अगर यहाँ बैठा हुआ हर पालक अगर अपने बच्चों को नहीं देगा, तो वो विजन के बिना बच्चा आपका अधूरा रहेगा और वो एक अच्छा एसेट नहीं बन सकता है इस देश के लिए। आई होप मैंने आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि आप लोगों का दिल दुखे। जो दिल का एक जो बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश की है। आप सभी से अपेक्षा है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स की आप लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे, और ना सिर्फ प्लानिंग करेंगे बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे साथ जो है काम करेंगे। जितने भी पेरेंट्स रैली में आए, रैली में पार्टिसिपेट किया, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। We paid great respect to our forgotten superheroes for the wonderful performance. We truly salute their sacrifice and bravery. Let's have a big round of applause for all our participants. Seeing this, the feeling of patriotism for the country get refreshed, get revived. But how is the feeling of patriotism revived in the heart of our young generation? Is what I wonder. And the answer is my mind by making them know about our superheroes pre and post independence.
You are right, soldier. That's what I was trying to say. Now tell me, how many of us know about the great rifleman Jaswant Singh Rawat who lost his life in Indochina War of 1962? Hardly any, but today I cannot resist myself from talking about the great rifleman back. Jaswant was the only who refused to go back and held his post. He alone killed 300 Chinese soldiers and fought the battle single-handedly for 3 days. Oh, such a brave man. And do you know, on the third day, when he was surrounded by Chinese from all the sides, he shot himself dead, and the Chinese cut his head and carried it home as a war souvenir. Oh God, the Chinese were so impressed by the man's bravery that they returned head Indian along with brass bust when the war was over. No wonder he was titled the Rifleman, as he killed 300 Chinese soldiers along with his rifle. He was from Uttarakhand. Jaswantgarh is building in his lovely memory, Tangwan district of Arunachal Pradesh. This reminds me of another forgotten hero who lost his life during the Kargil War in 1999, and that is Captain Vikram Batra. He was awarded India's highest and most prestigious award for valor for his action during the 1999 Kargil War in Kashmir between India and Pakistan. He was nicknamed the Sher Shah of Kargil. And do you all know, he fought the last battle for the country for 36 long hours. Yes, my friend, and after 36 hours of battle, he captured a most difficult peak in Leh at a height of 7,000 feet above sea level and hoisted the Indian flag there. 36 hours he was shot dead. The point of the hill is named as Captain Vikram Bhadra Top. Soldier, I remember one name, that is of Rishi Raj Sood. He was a commanding officer of one of the Indian naval ships which participated in operations in the Arabian Sea. Yes, I know. His ship is the part of anti-submarine attack force which was involved in hunting and killing enemy submarines. Yes, soldier. When INS Kukri received multiple torpedo hits from an enemy submarine, Commander should thrust his ship into a counter-attack in the enemy submarine. I am proud to tell you that the attack was conducted so fiercely and relentlessly that the enemy submarine could not carry out any further attack and had to make a retreat. For his efforts and love towards the country and for his bravery, he received the Veer Chakra. Like this brave naval officer, I remember Commander Milind Mohan Mokashi. He was the commanding officer of INS Sumitra. He is also known as Shark of Indian Ocean. Yes, soldier, I know about him. The INS Sumitra was heavily armed. Houthi rebels were patrolling the harbour in boats when Mokashi ship entered Aden harbour on the night of March 31. Exactly. After that, there were airstrikes by Saudi coalition against the rebels. He took a charge of situation and immediately deployed armed boat and ship and emission of Ikalus aim heavy cross-firing. Wow, what a presence of mind the naval officer had. He received Shaurya Chakra for his outstanding efforts to evacuate thousands of Indian and foreign nationals from war-ravaged Yemen during Operation Rahat in 2015. What a courage he have! I am speechless. There is a one in 1971 war with Pakistan. The Vice Admiral Krishna, flag officer commanding, having highly threat to strategy. With the use of his own trick, he launched it first air strike that stunned the Pakistani army in East Pakistan. Because of such brave soldiers who fight for our country on the border and the middle of oceans, we remain safe in our homes. certainly I agree. This reminds me of a song which we will certainly dedicate it to all our India superheroes. A postcard to perform a dance on Suno God Se Duniya Walo.
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। Fighting by the border. Let us hear more about such heroes from the soldiers. The soldiers in the army camp continue their conversation. Army officer, but we must forget to mention at least one naval officer. Oh, this remains the squadron leader, Ajay Ahuja. Firstly, tell me what is the meaning of the title of squadron leader? It is a title given to high rank officer in Indian Air Force. I have heard and know a lot about squadron leader Ajay Ahuja. Me too. He was a fighter pilot of the Indian Air Force who was killed by the Pakistani military in the 1999 Kargil war in Kashmir. In 1999, the Operation Vijay comeback over Kashmir, his craft was hit by an enemy, was attempting to locate another pilot in spite of dangers to his life. Yes, and he had to pay a price for his bravery. His craft hit and damaged severely, though the officer escaped safely. Do you all know he served as Indian Air Force pilot for 14 years? We salute this brave officer for his dedication and bravery. He was brutally killed by the enemies and his body was returned to the Indian Air Force after 4 days. History serves to be a great inspiration to the young Air Force pilot. There was the 26th November 2008 terrorist attacks in Mumbai. When we talk about the Mumbai terrorist attack of 2008 Mumbai attacks, after being shot 3 times in the chest. Yes, exactly. The police officer's bravery was honored with Ashok Chakra on 26 January 2009. All of us know about the entire incident which happened in 26 November 2008, which Karkari sir and dispatch officers were killed. I recollected totally at 9:45 p.m. 26 November 2008, Karkare sir received a call about a terrorist attack at Chhatrapati Shivaji Terminus station. He rushed to the station but found it deserted. He was then informed that the terrorists were moved to Kama Hospital next to Azad
After his officers and few constables reached the hospital, at that time the terrorists were hiding behind a red car there. When he turned back, they saw terrorists running. Ashok Kamte sir and Vijay Salaskar sir fired. The bullet hits the terrorist's arm. He was Kassab, the terrorist from Pakistan. At that time, another terrorist, Ismail Khan, appeared and in firing each other, Karkare sir Unfortunately, we lost Karkare sir and our other brave officers in the attack. His skill serves to be a great inspiration to the young Air Force pilot. Their life story and struggles truly serve to be an inspiration and instill patriotism in our younger generations. On the occasion of Independence Day, it is too time to remember them. Request to all parents stand on their places. पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए तेरा लुट ना जाए ओ तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले बल्ले 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 आसमां को भी वो झुकाए झुकाए यारो जो कभी भी हिम्मत ना हारे आदमी यहाँ पे जो चाहे यारो वो जमीन पे लाए सितारे बांधा किसने तेज हवा को वक्त को किसने देखा मेहनत से ही बदलेगी तेरे हाथों की रेखा तेरा लुट ना जाए तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल होए संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए ना जाए ओ तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल होए तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर ले इनकी पल्ले पल्ले
अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रही तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आँख खड़ी रहे नन्हा मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रही तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे